known the Lord for years, but this area has not been settled. So they're like Old Covenant, New Covenant, law, grace. We will see it from the Word if it's for us or not. बहुत सारे विश्वासी इस बात को लेकर परेशान है कि दशमांश नया नियम है, पुराना नियम है, लेकिन हम वचन से देखेंगे कि हमारे लिए है या नहीं है। God doesn't need a penny from us. परमेश्वर को हमसे एक अठन्नी नहीं चाहिए। But then why does he tell us? Why did he set this principle of tithing? लेकिन फिर परमेश्वर ने ये सिद्धांत ये क्यों दिया हमें दशमांश का सिद्धांत? For our benefit. हमारे फायदे के लिए, Not for him. अपने लिए नहीं। Every principle he establishes on earth is for our benefit. हर एक सिद्धांत जो परमेश्वर ने पृथ्वी पर लागू किया वो हमारे फायदे के लिए किया है। Amen. None of God's children should live in poverty because poverty is a curse. परमेश्वर की कोई भी संतान गरीबी में ना जिए क्योंकि गरीबी एक श्राप है। Poverty is not your father's will for you. गरीबी आपके पिता की इच्छा नहीं है आपके लिए। It's not about money, it's about your ability to rule over money. मुद्दा पैसा नहीं है, मुद्दा है आपकी क्षमता पैसे पर प्रभुता करने की। It's about your will, it's about consistently setting it aside, declaring that my God lives and he is the source of my finances. आपकी इच्छा शक्ति को दर्शाते हुए जहां आप निरंतर बार बार दोहराते हुए पैसे को अलग करते चले जाते हैं परमेश्वर के लिए, ये गवाही देते हुए कि मेरा परमेश्वर जीवित है और वो मेरे जीवन का सोता है। The Bible doesn't say, but it says don't work hard to be rich because rich is a fruit of our covenant with God. बाइबल कहती है अथक परिश्रम मत करो अमीर होने के लिए, क्योंकि अमीर होना फल है हमारी उस वाचा का जो परमेश्वर ने It's हमारे not साथ the बांधा। root. वो नींव नहीं है। When you're hustling to be rich, you are making money as number one thing in your life. जब आप बहुत परिश्रम कर रहे हो अमीर होने के लिए तो आपके जीवन का प्रथम मुख्य कारण है पैसा। But when you're doing it godly way, जब आप ईश्वरीय रीति से वो करेंगे your prosperity will be effortless. तो आपकी समृद्धि बिना किसी मेहनत के होगी, Effortless. बिना मेहनत के। Amen? That's what your father wants. ये है जो आपका पिता चाहता है। So tithing is mentioned in the first book of Bible. सो दशमांश का परिचय बाइबल की पहली किताब में किया गया, Right? In the very first book of Old Testament. पुराने नियम की पहली किताब में। Right? So that's Genesis 14:18. उत्पत्ति 14 उसका 18। Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was the priest of Most High God. तब शालेम का राजा मल्कीसिदक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया। So the context is that Abraham is coming back from a war with spoils. Abraham has seen victory. Now he's coming back with spoils. और मुद्दा यह है कि अब्राहम एक युद्ध लड़कर जीत कर और बहुत सारी संपत्ति लेकर उस युद्ध में से वापस आया है। And he meets this mysterious character called Melchizedek. और उसको बहुत ही रहस्यमयी एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम मल्कीसिदक है। The Bible doesn't talk much about him, बाइबल इस व्यक्ति के बारे में ज्यादा नहीं बोलती, but the Bible clearly says that he had no mother, no father. लेकिन बाइबल ये बताती है इस व्यक्ति के बारे में ना ही इसकी माँ थी ना ही इसका पिता था। And he was a king of Salem, which comes from the word shalom or righteousness. He was the king of righteousness and he was a high priest. वो शालेम का राजा है, शालोम या धार्मिकता का राजा था और परम प्रधान परमेश्वर का याजक था। And many believe that he was a pre-incarnate appearance of Jesus Christ. Before people knew Jesus, he appeared as Melchizedek. और बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि इससे पहले कि यीशु मसीह यीशु का रूप धारण करके पैदा हुए होते, यीशु मल्कीसिदक के रूप में आए। And now Abraham meets this man, this king priest called Melchizedek. और अब अब्राहम इस राजा याजक मल्कीसिदक से मिलता है। Now what did Melchizedek bring? मल्कीसिदक क्या लेके आपने साथ? Bread and wine. रोटी और दाख मधु। What does that symbolize? ये क्या दिखाता है? Communion. प्रभु भोज। On the night Jesus was betrayed, he took bread and wine and said, "Eat, this is my body broken for you. Drink, this is my blood shed for you." जिस रात को यीशु को धोखा दिया यहूदा ने, उस रात यीशु ने अपने चेलों को रोटी दी, कहा खाओ ये मेरी देह है, और दाख मधु दी, कहा पियो ये मेरा लहू है नई वाचा का। And he blessed him and said, "Blessed be Abraham of Most High,
possessor of heaven and earth. और उसने उनको आशीष दी और कहा, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। And blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand. और धन्य है परम प्रधान परमेश्वर जिसने तेरे विद्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। And he, that means Abraham, gave him, Melchizedek, a tithe of all. और तब अब्राम ने उसको यानी कि मलकीसेदेक को सारी वस्तुओं का 10वां हिस्सा दिया। Now, nobody told Abraham to do that. किसी ने अब्राहम को नहीं कहा था कि ऐसा कुछ। But the thing with communion is, you remember Jesus gave communion to two disciples on the road to Emmaus and their eyes were open. When you take communion with the right heart, your eyes would open to many truths that are in the Bible. अब प्रभु भोज की बात ये है, अगर आपको याद हो, अमाउस के रास्ते पर 2 शिष्य जा रहे थे यीशु मसीह के। जब उन्होंने प्रभु भोज लिया, उनकी आंखें खुल गई। जब आप प्रभु भोज लेते हैं, राज्य के कई सत्य हैं जिनको देखने के लिए आपकी आंखें खुल जाती हैं। And Abraham, और अब्राहम without anybody telling him, बिना किसी के उसको बताए हुए, by revelation, प्रकाशन के द्वारा gave tithe दशमांश देने लगा of all that he had जो कुछ उसके पास था उस सब to Melchizedek. मलकीसेदेक को। You know that law was given 450 years after this. व्यवस्था इसके 450 साल के बाद दी गई। So people who say that tithing was in the law, they should go a little back, just in the first book of Bible, and read this. तो जो लोग कहते हैं कि दशमांश तो पुराने नियम में था, उनको कहें थोड़ा सा पीछे जाएं, बस पहली किताब में चले जाएं बाइबल की, वहां पे मिलेगा। Right? There is tithing under Abrahamic covenant. अब्राहम के साथ जो परमेश्वर की वाचा थी, वहां पर हम दशमांश को देखते हैं। And because nobody told Abraham, but he got revelation, the motivation for him to give was faith. और क्योंकि अब्राहम से किसी ने ये बात नहीं कही, उसने प्रकाशन से जान लिया और दशमांश दिया, तो एक ही प्रोत्साहन था उसके देने के पीछे, वो था विश्वास। Amen? So what happened when Abraham met Melchizedek? सो क्या हुआ जब अब्राहम मलकीसेदेक से मिला? He gave bread and wine उसने उसको रोटी और दाखमधु दिया and he received tithes. और दशमांश ग्रहण किया। Melchizedek priesthood still receives tithes. मलकीसेदेक का याजक पद अभी भी दशमांश ग्रहण करता है। Tithing in the new covenant should never be motivated out of religious obligation. नई वाचा में आने के बाद दशमांश देना कभी भी धार्मिक दबाव या रीति रिवाज के कारण ना हो। Listen to this. सुनिए, In the new covenant, नई वाचा में you don't tithe because you have to, you get to tithe because it's a privilege. नई वाचा में आपको दशमांश देना पड़ेगा नहीं, लेकिन देना एक सौभाग्य है क्योंकि हम परमेश्वर को दे रहे हैं। Do you wanna learn how the early church gave? आप सीखना चाहते हैं कैसे पहले की कलीसिया ने दिया? Not 10%, 10% नहीं, not 20%. 20% नहीं, They sold their houses, their properties, their possessions. अपने घर, संपत्ति, जायदाद सब बेच डाला। Whenever you are giving tithing as a prophetic act, you are declaring that He lives and He is my source. Not the money in my account, but He is my source. जब कभी आप दशमांश देते हैं प्रकाशन के द्वारा, तो आप ये घोषणा करते हैं कि जो पैसा मेरे हाथ में है ये मेरा सोता नहीं, मेरा जीवन का देने वाला नहीं, लेकिन वो जो जीवित है वो मेरे जीवन का सोता है। Amen. Tithing is the entry level training for you to learn to have rulership over money. क्योंकि जान लीजिए, दशमांश वो प्राथमिक प्रशिक्षण है, प्राथमिक प्रशिक्षण जिसके द्वारा आप पैसे पर प्रभुता करना सीखते हो। Tithing is a two-way test. दो तरफा परीक्षा है दशमांश देना। Everywhere else in the entire Bible says, do not test God. हर जगह बाइबल यही कहती है, परमेश्वर को ना परखें, उसकी परीक्षा ना ले, Right? है ना? But God says, लेकिन परमेश्वर कहता है tithe दशमांश दो and test me. और मेरी परीक्षा ले लो। This is the only one area in the Bible where God said, if you do it, you can test me. एकमात्र क्षेत्र है ये बाइबल में जहां परमेश्वर ने कहा कि ऐसा करके तुम मुझे परख सकते हो। And it's a two-way test. और ये दो तरफा परीक्षा है। It proves the faithfulness of God, integrity of God that is written word. ये साबित करती है परमेश्वर की विश्वास योग्यता और उसकी खराई जो उसके वचन में लिखी है। Second part, दूसरा,
it tests your faithfulness. ये परखती है आपकी विश्वास योग्यता उसकी ओर। I'm not teaching you the love of money. I am divorcing you from the love of money. मैं आपको पैसे का प्रेम नहीं सिखा रहा हूँ, उसका रिश्ता खत्म कर रहा हूँ I'm आपसे। telling you, don't pursue it. मैं आपको ये कह रहा हूँ, उसके पीछे मत भागो। Everything will be added सब कुछ जुड़ जाएगा आपके as you जीवन seek ye first the kingdom में of जब God. आप उसकी राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करेंगे। Amen.